Hi, good morning, my dear student. Today we will continue your class 11th history, chapter 10, displacing indigenous people. Dear student, if you would remember my previous class where I have discussed in starting of this chapter about the problem of the native peoples. We have also discussed that how the outsiders, the settlers, the Europeans, they reached their native lands, they entered in their native lands and they exploited their natural resource as well as their human resource. They destroyed their culture, their traditions, their ritual practices, everything. And we have also discussed about that the native peoples of the America and their origin. Today we will try to discuss the next topic, encounters with Europeans. My dear student, in my previous video I have also discussed about that some specific word which denote, which express the native peoples. In the other countries, in the various countries, they use the different language, the different word for them, like aborigines, like natives, like nations, and American Indians, Native Americans, Red Indians, First Nations people. These are all words that was used by the Europeans to the native peoples who lived in particular land. We have also discussed what is the meaning of natives. हम लोगों ने नेटिव्स कौन है उनके बारे में बात की. हम लोगों ने कहा था कि नेटिव्स उन्हें कहते हैं जो उस मूल क्षेत्र में अत्यंत प्राचीन काल से रहते आए हैं. वो वहां के मूल वासिंदे लोग हैं जिनको बाहर से आए हुए लोगों ने नेटिव्स कहा. जिन्हें बाहर से आने वाले सभी लोग जिन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई और वहां के मूल वासिंदों को नेटिव वर्ड से डिनोट किया, एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब. ये लोग कौन है? ये नेटिव्स हैं. As well as we have seen the other word which used in the other countries for the natives, like aborigines, like red Indians, like Native Americans, indigenous people, First Nations. These are all words that is similar. ये सभी शब्द एक समान है. And in my last video, I told you a story. According to that story, the native peoples of America, they felt that their brothers and sisters who they came from the outside of the ocean, समुद्र के उस पार से वो आएंगे, beyond the ocean, और आके वो उनसे मिलेंगे, वो टाटाइल के रूप में होंगे. It means it was indicated that the stone tables that the Hopi had to the first brothers and sisters that would come back to them would come as a tortoise across the land. They would be human beings, but they would come as a tortoise according to their faith and their beliefs. When the Europeans, when the Spanish, they entered in their native lands to exploit their resource, to search the gold, the native peoples misguided them, having seen them. वो लोग मिसगाइड हुए, they were misguided, उन्हें देख करके कि ये लोग हमारे भाई बहन हैं जो यहाँ आ रहे हैं. बट एक्चुअल मैटर दैट वाज टोटली डिफरेंट. और धीरे धीरे ग्रेजुअली दे फेल्ट that what is the actual situation, what is the main aim of the outsiders, which they felt that they were brothers and sisters. वो जिसको अपना भाई और बहन समझ रहे थे, जो बाहर से आए थे, उनके मेन एम यहाँ पे आने के क्या थे, धीरे धीरे उन चीजों को समझ गए. जब उन्होंने देखा कि ये लोग हमारे यहाँ के नेटिव्स के रिसोर्स को, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट गुड्स हैं, उन पे ये किसी न किसी तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं. दे यूज देयर ओन रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर ओन वेज. That is the very strange matter with them.
एंड दे फेल्ट व्हाट सोनली, उन्होंने इस चीज को समझ लिया और जल्दी ही उन्होंने इस पर एक्शन लेने शुरू किए। इट मीन्स जल्दी वो इन चीजों के क्या अगेंस्ट काम करने लगे। इन चीजों को हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था। टुडे वी विल डिस्कस द इनकाउंटर्स विथ यूरोपियंस। व्हाट हैपेंड व्हेन द इनकाउंटर्स विथ यूरोपियंस, क्या हुआ जब वो यूरोपियंस से मिले, उनका यूरोपियंस से मुकाबला हुआ। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। When you will read this paragraph, you can easily understand that what happened with native peoples. Who, कौन था जो क्या था जिसके लिए फायदेमंद हुआ उनका आपस में म्यूचुअल क्या एक दूसरे से कनेक्शन मिलना। नो डाउट यूरोपियंस दे वर इन द एडवांटेजियस सिचुएशन एंड कंडीशंस। जो यूरोपियंस थे वो अच्छी सिचुएशंस में थे, वो अच्छी स्थिति में थे। इन चीजों को वी विल डिस्कस इन दिस पैराग्राफ। इन द 17th century, the European traders who reached the north coast of North America after a difficult 2-month voyages were relieved to find the native peoples friendly and welcoming. Unlike the Spanish in South America, who were overcome by the what? Abundance of gold in the country. America, who were overcome by the abundance of the gold in the country, these adventurers came to trade in fish and what? Furs, in which they got the willing help on the natives who were expert at hunting. 17th century, एक लंबे महीने के बाद, करीब करीब 2 महीने की कठिन समुद्री यात्रा करने के पश्चात ये जो यूरोपियंस थे स्पेनिश, वो अमेरिका पहुंचे, उत्तरी अमेरिका के तट पे पहुंचे। ये यूरोपीय व्यापारियों को देखकर ये बड़ा सुकून लगा कि उन्होंने 2 महीने बाद कहीं जमीन का एक टुकड़ा देखा। फिर उन्होंने उनके साथ वहां के स्थानीय लोगों का अच्छा व्यवहार, जो स्थानीय लोगों ने उनके साथ अच्छे से क्या किया, पेश आए, ये उनके लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। What I am telling that when they reached on the coast of the North America, unlikely the Spanish what they failed, they find the native peoples friendly and welcoming. उन्होंने जो देखा वहां के लोग, उन्होंने पाया कि जो वहां के लोग हैं बड़े फ्रेंडली हैं और उनका बहुत क्या किया, स्वागत किया, आवभगत किया। यस, इट वॉज डिफरेंट मैटर विद देम कि ये लोग दक्षिण अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत, जो वहां की सोने के प्रचुरता, जिनको विश्वास था कि वहां पे खूब सोने मिलेंगे, सोना इट मीन गोल्ड, उनकी जगह ये लोग मछली और फर के व्यापार के लिए ये लोग वहां पहुंचे और उनको ये चीजें मिली भी। धीरे धीरे ये लोग इन चीजों के लिए वहां से अपने संबंध बनाए, उनसे बड़े मात्रा में फर और ये इस तरीके के हंटिंग गुड्स थे उनको उन्होंने प्राप्त किया। और उन्होंने पाया कि यहाँ के जो लोग मूल बासिंदे हैं, दे वर मच एक्सपर्ट इन हंटिंग। क्या है, उन्होंने देखा कि ये लोग क्या है, द नेटिव्स हु आर एक्सपर्ट इन एट हंटिंग। फर्दर साउथ along the Mississippi River, the French found that the native held regular gathering to exchange handicraft unique to tribes or food items not available in other regions. It means the French, when they minutely observe about the culture of that peoples, their practices, they felt that when along the Mississippi River, the French found that the natives held regular gathering to exchange handicraft unique to the tribal or the food items not available in other regions. ऐसी वस्तुओं मिसिसिपी नदी के किनारे वो लोग
फ्रांसीसियों ने पाया कि नेटिव्स जो हैं वो मिसिसिपी नदी के किनारे नियमित रूप से जमा होते हैं और उसके पीछे वो अपनी वस्तुओं को, अपने हाथ से निर्मित वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं और उन वस्तुओं के बने, हाथ से बनी वस्तुओं के बदले खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए वहां पे उपलब्ध हैं, इकट्ठा होते हैं, गैदर्ड होते हैं। और ये चीजें, उसमें से कुछ वस्तुएं ऐसी थीं जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में नहीं पाई जाती थी, सिर्फ वहीं पाई जाती थी। ये बातें महसूस की गई फ्रांसीसियों के द्वारा। इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग हियर, दैट having seen that the gathering of the native peoples on the river bank of the Mississippi and seen their exchanging goods, artifacts, the fooding materials, they got stuck that these goods, this type of handicrafts never found, कहीं नहीं पाया जाता था। इन होल वर्ल्ड, दुनिया में इन किसी भी क्षेत्र में इस तरह की वस्तुएं नहीं पाई जाती थी। ये देख के वो आश्चर्यचकित हुए। इन एक्सचेंज फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स द यूरोपियंस गेव द नेटिव्स ब्लैंकेट, आयरन, वेसल्स इट मीन्स विच दे यूज्ड। The Europeans gave to what? The vessels, it means it was weapons which they used sometimes in place of the clay of pots. It means कह रहा है कि वो लोग वहां पे जो इकट्ठा होते थे, यूरोपियंस ने भी अपने वस्तुओं को वहां पे क्या किया? एक्सचेंज किया। यूरोपियन गेव द नेटिव्स ब्लैंकेट, नेटिव्स को यूरोपियंस ने ब्लैंकेट दिए। आयरन वेसल्स दिए। आयरन वेसल्स इट मीन्स क्या? लोहे की बनी हुई वस्तुएं, लोहे के बर्तन, जिसे कभी कभी अपनी मिट्टी के पात्रों की जगह वो इस्तेमाल करते थे। आयरन वेसल्स विच दे यूज्ड समटाइम्स इन द प्लेस ऑफ देयर क्ले पॉट्स। गन्स विच वॉज ए यूजफुल सप्लीमेंट ऑफ बो एंड एरो टू किल एनिमल्स। गन द चेंज the life of the native peoples. They what? They denied bow and arrow. Why? Because the gun, that is the better technology for hunting. Hunting के लिए गन सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी तीर और धनुष की तुलना में, इसलिए वो जल्दी रिप्लेस कर दी गई। It means bow and arrow gradually replaced by gun, and gun that was provided by the Europeans to the native peoples. नेटिव पीपल्स के लिए ये गन, ये ब्लैंकेट्स, ये आयरन वेसल्स, ये देने का काम यूरोपियंस ने किया। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, वन मोर थिंग्स विच यू हैव टू नोटिस, दैट वन मोर थिंग्स दैट वाज आल्सो गिवन बाय यूरोपियंस टू द नेटिव्स। क्या? दैट वाज एल्कोहल। एल्कोहल, they don't know about the alcohol. It means the native peoples, they don't know, कब नहीं जानते थे, they didn't know about that what is the meaning of alcohol, but in the attraction, क्या उनके साथ attraction में, जब with the attraction of Europeans, they aware about what is the meaning of alcohol, और उनको alcohol उन्होंने उपलब्ध कराया। It means यूरोपियंस ने उन्हें क्या दिया? यूरोपियंस ने उन्हें जिन चीजों को दिया उसमें ब्लैंकेट्स, आयरन वेसल्स, गन एंड एल्कोहल। दिस लास्ट आइटम, इट मीन्स एल्कोहल, वाज समथिंग द नेटिव हैड नॉट नोन अर्लियर एंड दे बिकेम एडिक्टेड टू इट। इट इज द व्हाट? इट इज द ट्रिक ऑफ द यूरोपियंस। फर्स्ट दे एडिक्टेड द नेटिव पीपुल्स, किसके लिए? एल्कोहल। उन्हें शराब देके उन्हें एडिक्ट बनाया गया, और फिर जब वो एडिक्टेड हो गए तो उस एडिक्शन का लाभ लिया गया। किसके लिए? एक्सचेंज करने के, वस्तुओं के आदान प्रदान में, अपनी चीजों को एक्सचेंज करने के लिए, कुछ शर्तें थोपने के लिए। इट मीन्स द यूरोपियंस एक्वायर्ड फ्रॉम द नेटिव्स एन एडिक्शन टू alcohol, not only alcohol, tobacco also.
They became addicted to it, which suited the European because it enabled them to what? Dictate the terms of trade. यूरोपियंस ने पहले उन्हें क्या किया? शराब और तंबाकू का आदी बनाया, उनको उसकी लत लगाई और फिर अपनी शर्तें, व्यापारिक शर्तें इन लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया. अब आप समझ सकते हैं, यू कैन इजली अंडरस्टैंड दैट कि वेरी जनरस नेटिव पीपुल्स, दे वर व्हाट? They were misguided by, they were cheated by Europeans. They don't know about what is the meaning of tobacco. They don't know about that what is the meaning of alcohol. But Europeans uses alcohol and tobacco as a weapon for the trade. Terms of trade. व्यापार की शर्तों के लिए उन्होंने इसको हथियार के रूप में यूज किया. The Europeans acquired from the natives an addiction to tobacco and alcohol. ये यूरोपियन से ही इस नेटिव लोगों ने क्या किया था? टोबैको और शराब पीना सीखा था. It also, I think nowadays the liquor people always disliked by the society. जो शराबी होता है वो समाज के द्वारा डिसलाइक किया जाता है, पसंद नहीं किया जाता. लेकिन हाउ स्ट्रेंज, हमने देखा कि किस तरीके से यूरोपियंस ने अब बड़ी आसानी से अपने ट्रेड के लिए इन चीज़ों को, उनको इसका एडिक्टेड बना दिया, उनको शराब की लत लगा दी और अपनी जो व्यापारिक मांग थी, व्यापारिक चीज़ें थी, शर्तें थी, वो उनके ऊपर आसानी से थोपने लगे. द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू रीड, दैट इज द म्यूचुअल परसेप्शन. इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस व्हाट द बॉन्डिंग विद द यूरोपियंस एंड नेटिव पीपल्स. कैसे, क्या सोचते थे? बॉन्डिंग हियर, बॉन्डिंग इट मीन्स नॉट दैट द रिलेशन बिटवीन द यूरोपियंस एंड द नेटिव पीपल्स दैट एस्टेब्लिश वेरी गुड वे, अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो गया. नो, आई मीन टू से दैट इन दिस चैप्टर वी विल सी द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिविलाइज्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द सिविलाइज्ड पर्सन. We will see here. And what is the definition of the what? The person who lived in city. शहर में रहने वाले लोग कैसे होंगे, सिविलाइज लोग कैसे होते हैं, और फिर इनके साथ यूरोपियों के संबंध कैसे हुए. It means what is the relation between the native peoples and Europeans. We will see in this topic. During 18th century, in the 18th century, Western European defined a word civilized. Civilized. What is the meaning of civilized according to Europeans? Civilized की मतलब यूरोपियंस की डिक्शनरी में क्या था? किसे वो सिविलाइज करते हैं? सिविलाइज कौन था अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस? अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस सिविलाइज वो था जिनके पास क्या थे? फर्स्ट थिंग इज दैट द सिविलाइज्ड पीपुल इन द टर्म्स लिटरली एंड ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन. सेकेंड, फर्स्ट क्या? ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इफ दे अर्बन what? They follow the urbanism. And third, they literate or educate. उनके अनुसार literate. That is the three words. According to the peoples, the civilized peoples have three main what? उनकी quality, three main qualities.
सिविलाइज वही हो सकता था जिसके पास ये तीन क्वालिटी हो। क्या? उनके पास एक ऑर्गेनाइज रिलीजन हो, वो शहर में रहते हों, और थर्ड वो लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, एजुकेट हो। यहाँ पे दैट वर्ड विच यूज एजुकेट, एजुकेट, पढ़े लिखे हो। सिविलाइज्ड वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हों, जो ऑर्गेनाइज रिलीजन के हों, और जो शहर में रहते हों। अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस द डिफिनेशन फॉर द सिविलाइज्ड पीपल, I think there is no need to explain again when I told you the meaning of the civilized people. Civilized people जब मैं कहूँ तो फिर दोबारा इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. In the 18th century, the Western European defined civilized people in the term of literacy and the organized religions and urbanism. To them, the Native of America appeared uncivilized, and on the basis of that, on the basis of three qualities, they felt that native peoples of America, they were uncivilized. नेटिव पीपुल्स ऑफ अमेरिका के पास क्या था? ये चीजें नहीं थी, इसीलिए वो अनसिविलाइज्ड कहे गए, इसीलिए वो असभ्य कहे गए यूरोपियंस के द्वारा. लेकिन इज दैट राइट? क्या ये सही था? क्या ये सही है? आई थिंक नो. वाई? बिकॉज आफ्टर ए लॉट ऑफ स्टडी एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू स्टोरी कि द क्वालिटी ऑफ द नेटिव पीपुल्स, even they were illiterate, but they were they have good knowledge about the nature. They know about the cycle of climate. They read and write the land, the environments, everything. So on the basis of that we can say कि वो भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वो नेचर के अच्छे जानकार लोग थे. और जो मीनिंग सिविलाइज्ड की दी जा रही थी यूरोपियंस के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग सिविलाइज्ड वही है जो साक्षर हो, जो पढ़ा लिखा हो. सिविलाइज्ड उसी को कहा जाएगा जो शहर में रहे. सिविलाइज्ड वही है जिनके पास अपना एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन हो. तो ये सारी चीजें नेटिव पीपल के पास इनके तरीके से नहीं थी. तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियंस दे कॉल्ड अनसिविलाइज्ड, इसलिए यूरोपियंस के लोगों ने इन्हें अनसिविलाइज्ड कहा. द फ्रेंच फिलासफर जीन जैक्स रूसो, such people were to be admired as they were the untouched by the corruption of civilization. A popular term was the noble savage. Some lines in a poem of the English poet William Wordsworth indicate another perspective. Neither he nor Rousseau had met a Native Americans, but Wordsworth described them as a living amid wild, where fancy hath small liberty to grace. The affection of the exalt them, refine the meaning that people living close to nature had only limited power of the imagination and emotions. How strange matter with the Europeans, and how they have the thoughts about the native peoples. कैसा वो रखते थे नेटिव पीपल के प्रति विचार, कैसी उनकी सोच थी. If you will read the Jean Jacques Rousseau, that was the French philosopher. वो ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं. He admired such type of peoples. What? क्यों? क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे. वो उन्हें कहते हैं कि जीन जैक्स रूसो, such people were to be admired as they were untouched by the corruption of civilization. Jean Jacques Rousseau, they admired the native peoples here, and
In other hand, Wordsworth, what they told about, what they wrote about the native peoples, वो लिखते हैं, वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि एक प्रचलित जो उनका क्या है, फेमस पॉपुलर टर्म, द नोबल सेवेज, some lines in poem by the English poet William Wordsworth indicate another perspectives. Neither he nor Rousseau had met a native Americans, but Wordsworth described them as living amid wilds where fancy hath small liberty to grace. The affection to exalt them or refine, meaning that people living close to nature had only limited powers and the imagination and emotions. वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जंगलों में रहने वाले लोग, जहां कल्पना शक्ति के पास उन्हें भाव संपन्न करने, उन्हें ऊंचा उठाने और उन्हें अधिक क्या करने, प्योरीफाई करने, उन्हें परिष्कृत करने, एजुकेट करने का अवसर बहुत कम है। इसका मतलब ये कि प्रकृति के निकट रहने वाला या प्रकृति के निकट रहने वाले लोग की कल्पना शक्ति और भावना, इमोशंस दोनों बहुत ही कम होते हैं। वर्ड्सवर्थ जहां ये कह रहे हैं कि जो लोग, द पर्सन्स हु लिव्ड इन फॉरेस्ट, I mean to say that the native peoples directly, indirectly he comment on the native peoples that who lived in forest. They have no emotions. They have no imagination power. They have limited power of the imagination and emotions. According to Wordsworth, Wordsworth ये बातें कहते हैं कि उनके पास कल्पना शक्ति का अभाव है, उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है। जरूरत है, इट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द सिविलाइज्ड पीपुल टू क्या करने के लिए, टू एजुकेट देम, टू प्रमोट देम एंड देयर कल्चर, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति को ऊंचा उठाएं, उनको प्रमोट करें अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मेथड्स के अकॉर्डिंग। हियर वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नाइदर वर्ड्सवर्थ नॉर जीन जैक्स रूसो नेवर मीट नेटिव पीपुल्स, बट देयर डिस्क्रिप्शन, what they describe about the native peoples, that was totally different। जहां पे वर्ड्सवर्थ उनकी आलोचना कर रहे हैं, when वर्ड्सवर्थ who criticized the native peoples, and the other hand we have seen that Jean-Jacques Rousseau, they admired that the peoples, they called them what, the word noble savage। उन्होंने कहा कि ये लोग क्या हैं, ये लोग जो ये करप्शन है, करप्शन ऑफ सिविलाइजेशन, उनसे काफी दूर है, इस तरह की बात लिखते हैं। तो इन चीजों से कुछ चीजें एकदम क्लियर होती हैं कि लोगों के मन में क्या विचार थे नेटिव्स के प्रति। यूरोपियंस, व्हाट दे थिंक अबाउट द नेटिव पीपुल्स। सम वन दे हैव द डिफरेंट व्यू एंड द अदर ग्रुप्स दे हैव डिफरेंट व्यू। Someone believed that they were totally illiterate, they were wild, वो जंगली थे, वो जंगल में रहने वाले लोग थे। And some they believed that they were what, the noble savage, they untouched the corruption of civilization। दो तरह की विचारधारा है which we see here। If you read the next line, to the natives the goods they exchanged with the Europeans were given in friendship for the Europeans. The dreaming of becoming rich, the fish and furs were commodities which they would sell for a profit in Europe. To the natives, the goods they exchanged with the Europeans were given to friendship for the Europeans, dreaming for the becoming rich, the fish and furs were the commodities which they would sell for profit in Europe। जो मूल बासिंदे, जो यूरोप के लोग नेटिव क्षेत्र में गए, वहां के जो मूल बासिंदे थे, नेटिव्स थे, इन मूल बासिंदे यूरोपीय लोगों के साथ जिन चीजों का आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते थे, वे यूरोपीय लोगों के लिए, वे उनके लिए दोस्ती में दिए गए उपहार थे। इट मीन्स एक तरफ तो नेटिव्स जिन चीजों को
यूरोपियंस को दे रहे हैं, वो उनके लिए एज ए गिफ्ट के रूप में वो उन्हें दे रहे थे। लेकिन यूरोपियंस उन गिफ्ट को क्या मानते थे? ये अमीर होने का सपना देखने वाले यूरोपीय लोगों के लिए मछली, इट मीन्स फिश, और फर क्या थे? एक प्रॉफिट गुड्स थी, एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग गुड्स थी, जिससे वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए यूरोप में बेचना चाहते थे। और इन बेची जाने वाली चीजों के दाम उनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी के आधार पे डे बाय डे, ईयर बाय ईयर क्या कर रहे थे? बढ़ते रहते थे, उसकी वृद्धि होती रहती थी। इट मीन्स हियर द ऑथर क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड यू दैट व्हाट, आपको समझाना चाहता है, ऑथर आपको ये बताना चाहता है क्या कि टू द नेटिव्स द गुड्स दे एक्सचेंज विद द यूरोपियंस वर गिफ्ट गिवन इन फ्रेंडशिप। फॉर द यूरोपियंस ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग रिच, द फिश एंड फर वर कमोडिटीज which they would sell for profit in Europe, and the price of the goods they sold varied from year to year depending on the supply. What you have seen? एक तरफ तो उन्हें प्यार से वो चीजें ले रहे थे और दूसरी तरफ उन्हें वो हाई प्रॉफिट पे यूरोप में बेच रहे थे। Natives, they don't know about that, the price of that goods which was given by as a gift to Europeans. वो उनकी कीमत नहीं जानते थे। They were cheated by them. That's why I am saying. तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर we will continue this topic, mutual perceptions, and we will try to understand that what is bonding with the Europeans and the native peoples, and what happened with the natives in this relation. Goodbye and take care.